Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundhar Sulakshana and I will be teaching you economics. So students, today we are here to see Standard 12th Economics chapter number 7 Population. As you all know, we have already seen one part of this chapter. So today we are here to see the part 2 of the chapter in a very detailed manner. So before starting the today's current portion, let us move on with a short discussion of the previous portion. Previously we have seen about the introduction, the meaning of the population explosion and the portion of the population trend in India. So let us see it in a very brief manner. In introduction, we have seen that continuously if we are talking about any economical problem, then the population is inevitable to get far from that discussion, because the rise of the population which has been seen in the overall portion of the present continuous situation, that is the major reason for each and every economical problem. Even with the continuous rise of the economical portions of problem with the increase in the population, the basic responsibility of every country is to fulfill the basic requirement of each and every rise of the population in a very proper manner. In this manner, we have seen that wherever the limited resources that we are having, the natural resources that the country has to utilize in a very proper manner, and they have to fulfill the portion of the basic requirement of the entire population. For this, they have to use the natural resources. So here, the two aspects have been seen up in a very major portion. First one is the population and second one is the natural resources. What are the two aspects? Let us see that in the point wise. Number one, as the population is increasing, due to that the limited natural resources are not increases. Why? It is a God gifted thing, that is that only in that limited manner. A man cannot build up the land, means they cannot generate the land, the water, it is naturally gifted. So once the population is rising in a very inefficient manner, or we can say that in a very exploitative manner, in the other side the limited resources are being depleting fast. Deplete fast means are reducing in a very fast manner, which creates a dangerous situation for the future generation. First point was that. Second point, we have seen that as the population is increasing, due to that the economic problem are increasing. Why? Because the unskilled population is increasing. Once the unskilled population is increasing, it means they cannot give the optimum usage of the natural resources, and the inefficiency of their skillness. Due to that, the economic development is not being done in a very proper manner. So such two aspects has been seen up in the introduction, and in this now the study of economic is why important in the economics. Why we have to study of the economics has to be concluded by the population that came to an oriented essential manner. Rather than that, we have seen that as the rise of the population is been seen up, due to that only the most of the root cause of each and every economical problem is the rise of the population. Here the introduction winds up. After that we have seen the population explosion meaning. So as the rapid increase in the birth rate and the decrease in the death rate is the major reason where the rise of the population is being seen up. The net population rise is considered as the population explosion. We can say that due to the technology and many more things, the death rate has been came to down, and the birth rate, instead of being stability, it also increased, and due to that the gap between the death rate decrease and the birth rate increase, the rise of the population has been seen in a very exploitative manner, that is considered as population explosion. So in the basic year when we were seeing
After the portion of a certain Asian time, the population was the 36.1 crore only. But in the last census reading 2011, it was 121.2. It means approximately we can say that 84.92 crore people has been increased in the India. Rather than that, all over the world it is 7 billion population, but only in India there is 1.25 billion population. India is not only the expansion one in the population growth. All over the world it has been seen up, but still India is seeing a very worst position of the population increase. Rather than that, we can say that by the average rate 2.5 times the increase has been seen up. From the which period it started? From the year 1931 to 2011, the population started to rise in a very continuous manner, and on the year 1970 the explosion of the population was being identified. So here the meaning of the population explosion has been completed. After that, we have seen about the population trend. What is population trend? Population trend in India, in that we have to see the current trending portion of the population. What is the current scenario of the population? In this, what are the things included? In the trend of the population in India, size of the population. After that, the birth rate, death rate, rather than that, male to female ratio, urban and rural ratio. This all portion has been included. For this, you know that the statistical information is used up and we interpret that and analyze that in a very proper manner. But how we get this portion of the interpreted data, which means the statistical schedule? How we get that? You know that for population, the census reading has been done for getting the statistical information of the population. From where it started? So from the year 1871, Jamshedji Tata has initiated that the census reading should be done in India, and on the year 1891, the systematic way of the census reading has been carried forward, and after that it was decided that every 10 years census reading must be done mandatorily. And then the last, after independence, the first independent census reading was been done on 1951, and the recent reading was on 2011. So the next reading may be on this year or the year 2021. So I hope you all have understood this portion in a very well manner. So now let us move on with the today's topic in the PDF in the further video. So students, now let us move on with the today's portion. So today we are going to see the size and growth rate of India's population trend. I'm going to read it out, listen it out carefully. Size of population refers to the total population in India during different periods, or the numbers and the percentage increase in the population is known as population growth. The following table represents size of India's population and its population growth. So size of population का मतलब क्या? Size of population का मतलब total population जो इंडिया में अलग अलग पीरियड में इंक्रीज हुआ. जैसे हमने देखा कि 36 था तो 120, ये कितना 36 से 120 धीरे धीरे पहुंचा होगा ना, तो ये जो स्लैब उसको स्टडी करता है उसे साइज ऑफ पॉपुलेशन बोला जाता है. अभी उसी पोर्शन को परसेंटेज में हमने देखा 2.5% में टर्नओवर रेट, एवरेज रेट देखा गया, तो उस तरीके से परसेंटेज में जो इंक्रीज पॉपुलेशन में देखा जाता है उसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट माना जाता है. सो नीचे जो टेबल दिया गया है वो साइज ऑफ इंडिया का पॉपुलेशन और ग्रोथ रेट दोनों के बारे में स्टडी करके एनालाइज कैसे करते उसके बारे में बताया गया. टेबल 1901 से लेके 2011 तक देखा गया. इन दिस सेंस वी कैन से दैट कहीं ना कहीं द पोर्शन ऑफ द 10 to 15 ईयर्स हम बोल सकते हैं. 15 ईयर्स मतलब 10 ईयर्स के गैप में 15 ईयर्स का टेबल दिया गया है. सो साइज ऑफ द इंडियंस पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1901 to 2011 वी कैन से दैट वहाँ से लेके यहाँ तक का हर 10 ईयर के स्लैब का बीच का जो ईयर है वो दिया गया. जैसे टेबल आप देखो, ईयर सबसे पहले तो ईयर है, उसके लिए मैं ब्रश यूज कर देती हूँ ताकि आपको पता चले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर है 1901, सेकेंड है 1911, थर्ड है 1921, फोर्थ है 1931, फिर 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 एंड उसके नीचे है
2011, ठीक है। सो यहाँ तक का पोर्शन हमने डिटेल में देखा। सो अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो मोस्ट प्रोबेबली ईयर के बाद आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं, मैं थोड़ा सा टेबल को छोटा कर देती हूँ ताकि पूरा आपको दिख पाए। सो पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट 1901 में है 23.8, जो कि इंक्रीज होके 25.2 देखा गया। तो इंक्रीज यहाँ कितने का देखा गया, तो 2 पॉइंट का इंक्रीज देखा गया है। फिर 25.1 यानी कि यहाँ पे 0.01 का माइनस देखा गया है, ठीक है। सो इस तरीके से 27 यानी वापिस 2% का इंक्रीज, फिर 31 जो कि इंक्रीज में देखा गया, फिर 36 1951 में 36 था तो उसका इंक्रीज फिर धीरे धीरे 43 हुआ, 54 हुआ, 68, 84, 102 एंड लास्ट ईयर में 121.0.2 का इंक्रीमेंट देखा गया। सो इस तरीके से कंटिन्यूअस राइज जो है यहाँ पे इफ यू कैन सी तो धीरे धीरे ये बढ़ता गया है। डेटा 23 से 21 आ रहा है, एरो इस तरीके से किया है, बट अगर आप नंबरिंग को देखो तो 23, 24, 25 इस तरीके से बढ़ता गया, यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। ये तो बात हुई साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब एवरेजली ग्रोथ रेट कैसे देखा गया, तो फर्स्ट जो है लास्ट डेटा हमें नहीं दिया गया, बट 1901 के पहले जो डेटा था उसमें प्लस 0.08 का ग्रोथ रेट इंक्रीज देखा गया, फिर प्लस 0.57 का इंक्रीज। जैसे कि हमने यहाँ देखा 25.2 और 25.1 यानी यहाँ पे माइनस 0.03 का जो है डिक्रीमेंट देखा गया। उसके बाद कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही है 1.04 का, 1.33, 1.25, 1.96, 2.20, 2.22, 2.1.6, 1.97 एंड 1.67। अभी लास्ट ये जो दो डेटा है इस डेटा को देखो तो 2 के कंपैरेटिव में कम हुआ है, बट फिर भी इंक्रीज तो हुआ है। हमें ये देखना है कि इंक्रीज हुआ, बट कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश अच्छी की जा रही है, दैट वी कैन से दैट। तो यहाँ पे टेबल कंप्लीट होता है। सो लेट अस मूव ऑन विद द सेंसस रीडिंग 2011 का डेटा यहाँ प्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ पे टेबल बनाया गया है, ठीक है। हम जो भी चीज़ देते हैं उसका डायग्राम हमको बनाना होता है। सो यहाँ पे डायग्राम है, लेट अस सी द डायग्राम इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। सो डायग्राम देखने के लिए अगेन मैं पेंट ब्रश यूज करके आपको अच्छे से समझा देती हूँ। सबसे पहले आपको वाई एक्सिस बनाना है, नेक्स्ट आपको एक्स एक्सिस बनाना है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब आपको पता है कॉज क्या है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या इंडिपेंडेंट है तो ईयर, तो हमें यहाँ करना है। सो इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंडेंट हमने रख दिया टोटल पॉपुलेशन करोड़, फिर हमारा उसका ईयर जो कि पोर्शन में देखा जाता है। सो अब हमें सबसे पहले पॉइंट ऑफ ओरिजिन करना है। अब स्लैब की अगर हम बात करते तो 10 ईयर्स की गैप देखा जा रहा है ईयर्स के अंदर, बट डेटा हमारे पास कहाँ से शुरू हो रहा है, तो 23 से शुरू हो रहा है। 23 से शुरू होके 121 तक देखा गया। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे वाई एक्सिस का एलोकेशन करना है। सबसे पहले 20 का गैप ले लेते, 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140 यानी इक्वल 20 ईयर्स का, यानी 20 करोड़ का हमने डिफरेंस लिया है। क्यों, क्योंकि 20 करोड़ में वहाँ पे डिटेल ऊपर के टेबल में दिया गया। उसके बाद हमें ईयर लेना है। ईयर में हमें क्या करना है, 1951, 61 इस तरीके से। यहाँ 121 में तो कंप्लीट हो जा रहा है, 130 तक ले सकते, बट हम स्लैब 20 का ले रहे हैं इसलिए 140 का हमने स्लैब लिया है। इस तरीके से 2011 तक का हमने एक्स्ट्रा एक नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये साल है, साल हम आगे का एक एजम्पशन ज़्यादा नहीं कर सकते। सो 2011 तक का जो पोर्शन है वहाँ तक का हमने देख लिया। सो ये करने के बाद सबसे पहले हमें अलोकेट करना है। क्या अलोकेट करना है, तो 1951 में क्या था, तो 1951 से यहाँ टेबल दिया गया है, आगे के पोर्शन से नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया कि 1901 से 25 से लेके इतना बड़ा डायग्राम पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने डेटा को शॉर्ट कर दिया और 1951 यानी हाफ से शुरू
किया है, 50 साल का इन्होंने ऐसे ही एग्रीगेट कर दिया। 1951 में 36 का यानी 36 का हमने स्लैब लेके वो डायग्राम बना के उसको शेयर कर दिया। ऊपर हमने उसका अमाउंट यानी जो करोड़ पीपल है पॉपुलेशन का वो इंडिकेट कर दिया। सेकेंड, हमें 1961 में 43.9 का बार बनाना है। थर्ड, हमें 54.08 का बनाना है। फोर्थ, हमें 68.3, फिफ्थ हमें 84.6 एंड सिक्स्थ हमें 102 का एंड लास्ट जो है 12102 का हमने किया। सो ये जो गैप है ये 10 ईयर्स का देखा गया है, ठीक है। सो ये जो गैप है ये हमने 10 ईयर्स का देखा है। सो 10 ईयर्स का देखने के बाद यहाँ पे जो पोर्शन है हमने 20 ईयर्स के गैप में यहाँ देखा है। सो यहाँ 20 ईयर्स और यहाँ 10 ईयर्स अब हमने एलोकेट कर दिया। अब आप एक चीज देखो तो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग के और पॉपुलेशन जा रहा है। माना कि ये जो पोर्शन है ये 4 पोर्शन में +2 पॉइंट से जो है ग्रोथ रेट देखा गया और ये 2 पॉइंट के लिए 1 पॉइंट के डेसिमल पॉइंट में इंक्रीज देखा गया। 2 से 1 तक कम हुआ बट फिर भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। सो यहाँ पे जो है डायग्राम अच्छी तरीके से कंप्लीट होता है। बट एज यूजुअल जब भी हम डायग्राम करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं और उसकी कंक्लूजन देखते हैं। सो लेट अस सी द एनालिसिस और कंक्लूजन ऑफ द पोर्शन ऑफ द डायग्राम वी हैव सीन। सो आई एम गोइंग to read it out, listen it out carefully. Analysis or conclusion. Number 1. Between 1901 and 1921, the rate of growth in population was slow. In the decade 1901 to 1911, there was 5.7 increase in the total population, while in the decade 1911 to 1921, there was a decrease in the rate of the population to the extent of 0.03. The main reason of the decrease is a high death rate. Frequent occurrence of famine led to various diseases like cholera, plague, tuberculosis, malaria and influenza leading to high death rate. हमने ये देखा ईयर 1901 से 1921 तक कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा था बर्थ रेट, बट कहीं ना कहीं यानी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था, बट स्लोली 1901 से 1911 की अगर हम बात करते हैं उस टाइम पे भी जो है इंक्रीमेंट देखा गया था। बट 1901 से 21 तक थोड़ा स्लो था, बट 1901 से 11 तक 5.7% का इंक्रीज देखा गया। अब 1911 से 21 अब 10-10 साल की बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहले 1901 से 1921 की बात की, डायरेक्ट 20 इयर्स की, उसमें ग्रोथ रेट जो है बहुत स्लो देखा गया, बट उसी में वापस 10-10 इयर्स का देखा तो 10-10 इयर्स में 1901 से 11 तक का 5.7 इंक्रीज देखा गया, जबकि 11 to 21 पे -0.03 का डिक्रीज देखा गया। क्यों देखा गया? क्योंकि मेन रीजन उस टाइम पे लोग ज्यादा मरे थे, डेथ रेट इंक्रीज हुआ था। क्यों डेथ रेट इंक्रीज हुआ था? डेथ रेट इसीलिए इंक्रीज हुआ था क्योंकि फ्रिक्वेंटली फेमाइन्स यानी फ्रिक्वेंटली बहुत सारी बीमारियां उस टाइम पे, जैसे कॉलेरा, प्लेग्यू, मैंने बोला था प्लेग्यू का रोग आया था, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं लोगों को ज्यादा मार रही थी। इस रीजन के वजह से जो है डेथ रेट ज्यादा देखा गया। लेट अस सी द सेकेंड पॉइंट। Except for 1921, the rate of the population growth was high in all the year. Hence, the year 1921 was considered a year of divided. After 1921, in every decade, the high growth rate has been high. So 1921 को हटा दो, सिर्फ 1921 में जो है एक्सटेंट यानी कमी देखी गई थी। उसके बाद जो है रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है बहुत ही आगे बढ़ता गया। तब से लेके करेंटली अभी तक की अगर हम बात करते तो कंटिन्यूसली हाई रेट में ही पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। इसलिए 91 को जो है एक्सेप्ट माना जाता है और उसको ईयर ऑफ डिवाइड यानी कहीं ना कहीं ये सबको बीच में से रोकने का कोशिश कहीं ना कहीं 1921 में हुआ था। बट फिर भी जो है उसके बाद जैसे कि बढ़ा फिर कम होके फिर बढ़ने लगा है। जो कम होने का जो डिवाइड कर रहा है दोनों को, वो 1921 का ईयर माना जाता है। नेक्स्ट पोर्शन, इन 1951 प्लानिंग स्टार्टेड इन इंडिया। व्हेन प्लानिंग स्टार्टेड इन 1951, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज 36.1 which rose to 102.7 crores after 5 decades in 2001.
Thus, the registered growth in population was 66.6 करोड़। तो 1951 में जो है इंडिया में प्लानिंग शुरू हो गया कि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल की ज़रूरत है। सो 1951 में हमारा कितना पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन देखा गया था, तो 36.6। उसके 5 डिकेड यानी 50 साल के बाद अगर आप देखो तो कितना इंक्रीज हो गया, 102.7 करोड़ का इंक्रीज देखा गया। और इवन ये रजिस्टर किया गया कि इस टाइम पे करीबन 66.6 करोड़ लोगों का इंक्रीमेंट यानी राइज इन द पॉपुलेशन देखा गया है। In present time, population of India increased by 170 lakh every years. Every year and Australia is added to India's population. अगर अभी प्रेजेंट बात करें, इंडिया के अंदर हर साल 170 लाख पीपल यानी कि 170 लाख पीपल हर साल इंडिया में ऐड होते यानी इंक्रीज होते, इतने बच्चे यहाँ पे बॉर्न अप होते कि जो कि एक ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है वो 170 लाख का है। तो हर साल एक मिनी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे ऐड हो रहा है, ऐसा माना जाता है। यानी ऑस्ट्रेलिया का टोटल जितना पॉपुलेशन है ये तो हमारा हर साल का पॉपुलेशन है। चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वाइल इंडिया रैंक्स सेकेंड। इन 1911 इंडिया पॉपुलेशन वॉज 25.2 करोड़ and within 1 century in 2011 it rose to 121.02 करोड़। तो चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री माना जाता है, इसलिए मैंने बोला वहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया, जबकि इंडिया सेकेंड रैंक में आता है। इस बार फर्स्ट रैंक मार देगा ऐसा लगता है, ठीक है। सो सेकेंड रैंक में आता है। तो 1911 में जब इंडिया की सेंसस रीडिंग हुई थी तब 25 करोड़ था, ठीक है। वही एक वी कैन से एक सेंचुरी के बाद यानी 100 ईयर्स के बाद, 1 सेंचुरी यानी 100 ईयर्स के बाद डायरेक्ट वो 121.02 यानी और 4 करोड़ ऐड कर दो तो पूरा 100 करोड़, वो जैसे सेंचुरी साल का हुआ वैसे सेंचुरी पॉपुलेशन का भी हो गया, ये हम बोल सकते हैं। सो यहाँ पे एनालिसिस कंप्लीट होता है। डेमोग्राफर्स फोरकास्टेड दैट बाय द ईयर 2000 इंडियाज पॉपुलेशन विल क्रॉस 100 करोड़ मार्क एंड इट हैज been proved right. According to the World Development Report 1997, India's population was 93 crore. According to the census of 2011, between 2011 and 2021, the estimated population growth in India will be 139.98 crore. तो कहीं ना कहीं जो है डेमोग्राफर्स यानी जो लोग बार बार रिसर्च करके सारी चीज़ें बताते, उन्होंने फॉरकास्ट किया, पहले से ही भविष्यवाणी कर दिया था कि 2000 में जैसे जो ईयर 2000 बैठेगा उसके बाद इंडिया का पॉपुलेशन जो है 100 करोड़ का हो जाएगा। और उन्होंने जैसे फोरकास्टिंग किया वो सही है, ऐसा हमने प्रूव किया। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिकॉर्ड 1977 में जो इंडिया पॉपुलेशन रिकॉर्ड किया गया था वो 93 था। उस टाइम पे सेंसस रीडिंग के हिसाब से 2011 से लेके 2025 के बीच में इंडिया का पॉपुलेशन जो है 139.98 करोड़ होगा, ये एस्टिमेट लगाया गया। बट अभी बीच में पेंडेमिक आ गया। लेट अस सी द डिसीजन और द एस्टिमेशन इज गोइंग टू बी प्रूव्ड राइट और रॉन्ग। सो आज का टॉपिक यहाँ तक रहेगा। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे। Students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So today we have seen the size of the population and the population growth rate of India in a very detailed manner. Before seeing the chart, we have discussed about the meaning, means what is the size of the population and what is the population growth rate in a very brief manner. So let us have a short summarization of the topic that we have seen today. So size of the population. Size of the population means हर साल जितना इंक्रीज लोगों के पॉपुलेशन में देखा जाता है, जैसे 25 करोड़ 27 करोड़ इस तरीके का जो साइज इंक्रीज होता है उसे साइज ऑफ पॉपुलेशन बोला जाता है। अब ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज होता है कंपेयरिंग टू प्रीवियस ईयर, इस साल कितना परसेंटेज में इंक्रीज देखा गया है उसे ग्रोथ रेट बोला जाता है। तो इसके बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए और अच्छे से इंटरप्रेट और एनालाइज करने के लिए हमें एक शेड्यूल जो है डायग्राम बनाने के लिए डेटा टेबल दिया गया था। डेटा टेबल जो है ईयर 1901 से लेके 2011 तक का प्रेजेंट हमारे पास किया गया, जो कि करीबन 110 ईयर्स का माना जाता है। 110 ईयर्स का डेटा हमें दिया गया है। सो मोस्ट प्रोबेबली 11 to 15 डेटा यानी पर्टिकुलर एक ईयर का गिनो तो 15 हमें इंफॉर्मेशन दिया गया था। 11 to 12 है बट 15 हम कंसिडर कर लेते, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे 1901 की अगर हम बात करते तो उस टाइम पे 22 to 23 करोड़ का
का जो है हमारा पॉपुलेशन देखा गया। धीरे 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 जो है पॉपुलेशन बढ़ता गया और वही 1951 में 36 हुआ और वही 2011 में रिसेंटली 121.02 का इंक्रीज में देखा गया है। करीबनली हम बोल सकते हैं कि ये जो पोर्शन ऑफ ये देखा गया उसमें हमने 100 करोड़ तक का इंक्रीमेंट ऑफ पॉपुलेशन देखा है। अब इस टेबल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके साथ साथ उसका ग्रोथ रेट बताया गया। कई ग्रोथ रेट में 0.87, 0.7, 0.6 इस तरीके से देखा गया, बट अप्रोक्सीमेटली 1921 में -0.03 देखा गया था, जो एक डिक्रीज था। उसके बाद कंटिन्यूअसली इंक्रीज देखा गया। स्लैब जो है परसेंटेज में 2.22 तक हाईएस्ट पोर्शन में देख के अभी रिसेंटली लास्ट 20 ईयर्स से यानी कि 2011 और 2001 में जो है 1.97 एंड 1.67 ऐसा करके थोड़ा 2 से नीचे कम हुआ। ऑलरेडी हम ट्राई कर रहे हैं कि कंट्रोल कर पाए, पर फिर भी कहीं ना कहीं इंक्रीज तो हो रहा है। इस तरीके का साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड परसेंटेज रेट पे ग्रोथ रेट हमने देखा। फिर हमने देखा कि उसकी शेड्यूल कैसे बनाना है। शेड्यूल में हमने एक चीज नोट किया कि 1901 से जो पोर्शन शुरू हुआ था हमने वहां से शेड्यूल नहीं बना, हमने शेड्यूल जो है 1951 से लेके 2011 तक का बना। सबसे पहले हमने वाई एक्सिस, फिर एक्स एक्सिस, फिर पॉइंट ऑफ ओरिजिन लगाया। अब अगर आप पॉपुलेशन ग्रोथ देखो तो 1951 में 36 था, उसके बाद जो है डायरेक्ट 47, 57 ऐसे बढ़ता गया। इसलिए हमने जो y के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ का स्लैब है, क्लास है, उसके 20 के डिफरेंस में लिया, यानी 20 करोड़ के डिफरेंस में लिया। 20, 40, 60 ऐसे करके 140 तक अलोकेट किया, क्योंकि लास्ट रीडिंग 121 का था, जो कि 30 के बीच में आता है। जब स्लैब 20 ईयर्स किए तो 140 पे हमने लास्ट अलोकेट किया। एक्स एक्सिस में हमने ईयर लगाया। ईयर 10 ईयर्स का ऑलरेडी दिया गया था, तो 1951 से लेके 2011 तक हमने लगा। फिर हमने जो है पॉपुलेशन के हिसाब से जो है बार बना। फर्स्ट 36.1, ऐसे ही 48.6 या 46.1 इस तरीके से हमने स्लैब को बना। लास्ट में जो है 2011 में 120.1 का 121.02 का स्लैब बना। अब हमने ये देखा कि कंटिन्यूअस इंक्रीज जो है 115 से लेके 51 से लेके 1951 से लेके 2011 तक देखा गया। उसके बाद हमने उसकी एनालिसिस देखा। ये डेटा हमारे सेंसस रीडिंग 2011 से हमें मिला। एनालिसिस में हमने देखा 1901 से 1921 तक एक स्लो वे में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। 20 इयर्स तक एक स्लो वे में पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। रेदर देन दैट सेकेंड हमने उसी को 10 इयर्स में जब बाइफ्रिकेट करके देखा तो 1901 से 1911 तक जो है थोड़ा इंक्रीज हुआ था, बट 1911 से लेके 1921 में है थोड़ा डिक्रीज भी देखा गया, -0.03 का। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हाई रेट ऑफ डेथ रेट देखा गया था। क्यों डेथ रेट? क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे फेमाइन्स जैसे कि कॉलेरा, प्लेग्यू, इन्फ्लुएंजा ऐसे बहुत सारे जो है बीमारियां फैली थी जिससे लोग ज्यादा मरे थे। उसके अलावा हमने नेक्स्ट ये देखा कि 1921 का जो ईयर है उसे ईयर ऑफ डिवाइड भी माना जाता है। क्यों द ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड माना जाता है? क्योंकि हमने देखा 1901 से लेके 2011 तक कंटिन्यूसली राइज ही हो रहा है, बट वो राइज होने के टाइम पे 1901 से लेके 21 तक राइज हुआ, फिर एक छोटा सा ड्रॉप आउट आया, फिर वापस राइज हुआ। यानी जो ड्रॉप है उसे डिवाइड, ये दोनों पोर्शन को किसने डिवाइड किया? तो 1921 ने, इसलिए उसको ईयर ऑफ डिवाइड माना गया। उसके बाद कंटिन्यूअसली आपने देखा हो तो 1921 के बाद 1931 से लेके 2011 तक कंटिन्यूअस राइज जो है इस पोर्शन का देखा गया। नेक्स्ट 1951 से जो कि 36.1 पॉपुलेशन देखा गया था, उस टाइम में गवर्नमेंट ने प्लानिंग शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। 1951 से लेके 2001 की अगर हम बात करते हैं, यानी कि 50 ईयर्स 5 डिकेड्स की बात करते, प्लानिंग करने के बावजूद हमारा 102.1 का इंक्रीमेंट यानी करीब 6.6 करोड़ का जो है इंक्रीमेंट पॉपुलेशन में देखा गया। सो इस तरीके से पॉपुलेशन प्लानिंग के बाद भी बढ़ता गया। रेदर देन दैट नेक्स्ट एक ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 170 लाख माना जाता है। हर साल इंडिया के अंदर 170 लोग जो है नए जन्मते हैं। इट मीन्स एवरी ईयर
हर साल 170 का इंक्रीमेंट पॉपुलेशन में इंडिया के अंदर देखा जाता है, यानी एक ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन हर साल हमारे में ऐड होता है। नेक्स्ट, चाइना जो है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री माना जाता है और उसे फर्स्ट रैंक मिलता है, जबकि इंडिया को सेकेंड रैंक मिल रहा है। डेमोग्राफिकर्स ने यह भी फोरकास्ट किया कि जिस तरीके से कंटिन्यूअस ग्रोथ रेट देखा जा रहा है उसमें ईयर 2000 के बाद इंडिया के अंदर अबाउ 100 करोड़ पॉपुलेशन होगा, और उनकी ये फोरकास्टिंग को हमने काफी सही प्रूव भी किया है। उसके बाद हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं जो एनालिसिस सेंसस रीडिंग देखा गया है उसमें ये बताया गया है कि 2011 से लेके जो पोर्शन ऑफ 2035 या 25 तक जो है इंक्रीमेंट ऑफ द पॉपुलेशन 139.63 यानी कि 139 तक का करोड़ पीपल तक का पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकता है। बट एज द पैंडेमिक अराइव्ड, हमें पता नहीं वो प्रूव सही हो रहा है कि शायद कुछ ईयर ऑफ डिवाइड इस पोर्शन में देखने मिलेगा। सो ये पोर्शन नया सेंसस रीडिंग 2021 में जो किया जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर। Rather than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.